Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. In this lecture, we are going to read out 3 of the given letters in our prescribed syllabus. In my previous lecture, I have taught you how to write a letter and how to set the pattern and how to produce the content of the letter. So now we are moving to whiteboards to discuss the 3 of the given letters. So dear students, topic is letter writing. As you know, how to write a letter. Letter writing is an art. And I told you, according to examination point of view, how to set the pattern and how to create the body of the letter. So in this lecture, letter number 3, letter number 4 and letter number 5 will be read out for your assistance. So open your books, we are just starting. Draw your special attention to board because the text is available. So letter number 2 is write a letter to your friend inviting him or her on your brother's marriage ceremony. So format क्या है, pattern क्या है, examination hall, उसके बाद comma, suppose name of city ABC जो कि मैंने बताया था abbreviated हो तो dots के साथ लिखते हैं. फिर supposed date जो कि मैंने बताया था कि डेट और सेशन को सेपरेट किया जाता है कॉमा के साथ. तो ये सब कुछ गौर करते जाएं. लेटर का जो बॉडी मटेरियल है वो मैं पढ़ने लगा हूं, सो प्लीज पे अटेंशन. माय डियर सुफियान, मैंने बताया था कि दोस्तों को खत लिखते हुए आप उनके नाम से भी उन्हें बुला सकते हैं. सो एड्रेसी का नाम आप लिख सकते हैं. आई होप you will find this letter in the best of your health. I'm fine as well and having a great time. The marriage date of my elder brother is fixed and it is exactly a month from now. Exactly, बिल्कुल, पूरे तौर पे. A month from now, अब से 1 महीना बाद. His fiancée lives in the nearby town, so we will have a combined function of Mehndi a day before the wedding. मेहंदी का फंक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है. The walima ceremony will be held in the ground adjacent to our home. Adjacent, मुल्हका, करीबी, जुड़ा हुआ. सो इस डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग को आप लिख लीजिए और इसकी प्रेपोजिशन को भी जरा देखें, एडजेसेंट टू. बाकी आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी है, सो मूव अहेड. इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिव्स एंड फैमिली फ्रेंड्स विल जॉइन अस फॉर द सेरेमनी. इट विल बी मोर फन फॉर अस because all of our old friends are coming. Indeed, it will be a memorable occasion to participate. Memorable, यादगारी. Occasion, मौका, त्यौहार भी कह सकते हैं. Participate, शमूलियत करना. I should hope that you will come a couple of days. Couple of days, चंद एक दिन पहले की बात हो रही है. Before the marriage day so that you can help me in shopping as well. So, the last paragraph. In my previous lecture, I told you कि content of the body अगर 3 paragraphs में produce किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा है. So, यहाँ पे last paragraph जो conclusion है और definitely greetings और salutation पे भी मबनी है. आइए इसे तवज्जो देते हैं. I'm not sending any formal letter to you. Formal letter, रस्मी सा खत. Because I think that our friendship
is above formalities now. Above formalities तकल्लुफात से बालातर, तकल्लुफात से बालातर. You can avail yourself of the facility of the Daiwo bus service. Daiwo bus service से आप सब बखूबी वाकिफ हैं. So यहाँ पे avail yourself of the facility. So इस सहूलत से आप ये फ़ायदा भी उठा सकते हो. avail का मतलब फ़ायदा उठाना, facility वो फ़ायदा, वो सहूलत. If you want, my mother can talk to your mother for permission. Permission, इजाज़त. So pay regards to all at your place. और आखिर पे मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर कैसे किए जाते हैं. ये स्पोज्ड नेम होता है XYZ के साथ. तो आइए इसको भी तवज्जो दीजिए. Yours sincerely XYZ. और XYZ लिखते हुए मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा डॉट्स का, फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल करते हैं. आपने इसी तरह लेटर को प्रोड्यूस करना है और इंशाल्लाह आप बेहतरीन नंबर हासिल करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, मूव टू नेक्स्ट बोर्ड टू डिस्कस अदर लेटर. सो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेटर. हमारा जो नेक्स्ट लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस. आप हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर पढ़ने गए हैं, तो आप अपने वालिद मोहतरम को ये ख़त लिखते हैं. सो अभी हम एग्जामिनेशन हॉल्स, सिटी ABC, डेट ना भी डिस्कस करें तो आई डू बिलीव दैट यू रिमेंबर इट. सो माय डियर फादर, एड्रेसी के बाद कॉमा आता है. सो उस कॉमे से बात आगे बढ़ाते हैं. मैंने कहा था पैराग्राफ्स जो हैं वो इंडेंटेड हों. सो इंडेंटेशन का ख्याल रखते हुए पैराग्राफ्स को स्टार्ट कीजिए. सो माय डियर फादर, होपफुली यू विल रिसीव दिस लेटर in the best of your mood. I'm quite well and doing fine in my studies. My house examination has just ended. Has just ended. Just का मतलब अभी अभी. You will be pleased to know, pleased, happy, खुश होंगे, that I have attempted all the papers to the best of my ability. आप अपने वालिद को क्या बता रहे हैं? अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपने हाउस एग्जामिनेशन के बारे में. और फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स हो रही हैं. आई होप टू गेट अ डिस्टिंक्शन इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स. सो सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. आई हैव बिकम एट होम. एट होम ये ईडियम होता है, इसका मतलब है कंफर्टेबल या स्किलफुल. तो यहाँ गौर कीजिए कि इसका मतलब क्या है. आई हैव बिकम एट होम नाउ विद द न्यू क्लास. तो इसका मतलब कंफर्टेबल. एंड द न्यू कॉलेज. द ओनली थिंग आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट इज टू मैनेज माई एक्सपेंसेस आउट ऑफ द अमाउंट यू सेंड मी एवरी मंथ. आपका जो माहाना बजट आपको भेजा जाता है उसकी दुश्वारी की बात आप करना शुरू कर चुके हैं ताकि आप परसुएड कर सकें अपने वालिद को कि वो आपके मंथली अलाउंस में इंक्रीज फरमा दें. तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है. द न्यू कॉलेज इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम माई हॉस्टल, सो आई हैव टू पे मोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन आमदोरफ्त के जो ज़राए आप इस्तेमाल करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 500 रुपीज इन द हॉस्टल ड्यूज. अब ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल के साथ कुछ इंक्रीज हो गया है हॉस्टल ड्यूज में भी. सो ये भी एक वजह है. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ज्वाइन एन अकेडमी बिकॉज द न्यू कोर्स इज रादर डिफिकल्ट. रादर कदरे. अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो सेकंड पैराग्राफ लिख रहे हैं इसमें वो अर्जेंसी है जो के वजूहात
की सूरत में आप पेश कर रहे हैं कि आपके मंथली अलाउंस में इंक्रीज कर दिया जाए. सो गो अहेड. आफ्टर पेइंग माई all dues, I'm left with almost no money. So दोबारा पढ़ेंगे. After paying all the dues, I'm left with almost no money. No money के कोई पैसे नहीं बचते जब ये सब कुछ अदा कर दिया जाता है. Sometimes I have to cut down my expenses on necessities of life. Cut down, decrease. Necessities of life, ज़रूरियाते ज़िंदगी. Due to this financial restraint, पाबंदी, दबाव, दोनों तरह से आप इसे समझ सकते हैं. Financial क्या है? माली. Financial means माली. I am even finding it difficult to concentrate on my studies. अब देखें, जब दबाव हो, मुश्किलात हों, तो definitely ये तालीम पे भी असर पड़ता है. So आपने ये भी वजह बयान कर दी. So I request for an addition of 1000 rupees in my monthly allowance. तो आपने आखिर पे क्या कर दिया? वो रिक्वेस्ट कर दी कि आपको कितने पैसे जो हैं मंथली अलाउंस में बढ़ा के आइंदा दिए जाएं. Pay my regards to mother and love to साद. देखा, भाई का नाम भी डायरेक्ट ही लिखा गया है. तो ये जो है ये अच्छा है कि आप वो नाम जो कि आप रोजमर्रा जिंदगी में भी दिल खोल कर और बिला झिझक लेते हैं वो लेटर में भी लिख सकते हैं. योर्स लविंग सन या डॉटर XYZ. So dear students, move to the next board to discuss the next letter. So our next letter is write a letter to your father telling him about your progress in studies. So again, आपके वेरी राइट साइड ऑफ द पेपर पे आपने क्या किया? एग्जामिनेशन हॉल, CDABC, डेट वगैरह लिखा. एंड देन द एड्रेसी. कौन है एड्रेसी? माय डियर फादर. सो क्या लेटर है? पढ़ते हैं टेक्स्ट को. आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल रिसीव दिस लेटर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. आई रिसीव्ड योर लेटर 10 days ago, पहले, but I was busy in my midterm exams, so couldn't write you earlier. अब earlier का भी मतलब क्या होता है? कबल, इससे पहले. हाँ, ये early की comparative degree है. You seem quite concerned. Concerned का मतलब क्या होता है? फिक्रमंद. You seemed का मतलब दिखाई देते हैं. You seem quite concerned about my studies as my previous result was below 80%. Below का मतलब नीचे. तो 80% से मेरा पिछला जो रिजल्ट था, क्योंकि वो 80% से नीचे था, इसलिए आप काफी फिक्रमंद दिखाई देते हैं. The result of the midterm exams has been announced and you will be delighted to know that I have got 88% marks in it. आपने एक गुड न्यूज भी अपने वालिद को सुनाई. I owe this success to Allah's favor. Favor, Allah's favor, अल्लाह की मेहरबानी. और owe this success, मैं इस कामयाबी के लिए खुद को मकरूज समझता हूं, शुक्रगुजार समझता हूं, ममनून समझता हूं अल्लाह की मेहरबानी का. योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, आपकी दुआओं और रहमतों का. एंड द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ माई वर्दी टीचर्स, और अपने इज्जत माब असातिज़ा कराम की मुनासिब रहनुमाई का. मैं इसे क्या समझता हूं? मैं इसके लिए क्या हूं? मकरूज हूं, मैं ममनून हूं. सो ओ का मतलब इंडेटेड, ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. For the final exam, I shall have to work hard even more. Definitely 88% मार्क्स से भी इम्प्रूव करना है रिजल्ट. तो वालिद को तसल्ली देनी होगी कि आप अगले एग्जाम में क्या करेंगे? इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे. I find difficulty in mathematics
and I am planning to get private coaching in it. So, आप अब अपनी प्लानिंग्स भी बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है और कैसे आप उसे इम्प्रूव करने की मंसूबाबंदी रखते हैं. I didn't prepare myself well enough in Pak studies and I am concentrating on it as well. As well जब आखिर पे आता है तो इसका मतलब also भी है और to भी है, यानी be. Moreover, मजीद बरा या इसके अलावा I'm trying to improve my writing speed because at times का मतलब sometimes, बाज़ औक़ात. और याद रखिए एग्जामिनेशन में 3 चीज़ें ही अहम होती हैं. बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट मटेरियल, सेकंड चीज़ बेस्ट मटेरियल जिसकी प्रिपरेशन की जाए, और डेफिनेटली बेस्ट प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन, प्रेजेंटेशन. और फिर डेफिनेटली वो कैसे इंप्रूव हो सकती है, वो आपकी उम्दा स्पीड ऑफ राइटिंग से हो सकती है. सो सच है, स्टूडेंट जो है वो सही प्लानिंग कर रहा है, आप अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं. सो क्या है? Moreover, I am trying to improve my writing speed because at times I cannot manage to complete the paper. I want to assure you, assure का मतलब यकीन दिलाना. I want to assure you that I have recognized my failings. Failings का मतलब weaknesses, कमजोरियां, खामियां, and now trying my utmost to improve them. Utmost बेपना, बेतहाशा, बहुत ज्यादा. I have reduced my sleeping hours. Sleeping hours, सोने के औकात को, घंटों को भी कम किया है. I have learned that one cannot climb the ladder of success with one's hands in pockets. बहुत ही प्यारा मैगज़िम है जिससे सारी बात को जस्टिफाई किया जा रहा है कि कोई भी शख्स कामयाबी के जीने पर चढ़ नहीं सकता अगर उसने अपना एक हाथ कहाँ डाला हो, जेब में डाला हो. सो आई नो, लास्ट पैराग्राफ है, ग्रीटिंग्स से सम अप करते हैं लेटर को. आई नो योर विशेस एंड सपोर्ट आर माई स्ट्रेंथ एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन स्टडीज. पे माई कॉम्प्लीमेंट्स to all at home, your loving son or daughter XYZ. So dear students, I do believe that you have got all these letters very intellectually. So now we are moving to discuss 3 of the exercises based on correction of verb. So move to the next board. Dear students, get ready, open your exercises. Exercise number 11 to 13. 3 of the exercises we are going to attempt. So please open your notebook as well because there will be some important points जो कि आपको ज़रूर लिख लेने चाहिए. So let's start. Exercise number 11 से हम start करेंगे और definitely हम 13 तक चलेंगे. एक्सरसाइजेस जो हैं वो सामने बोर्ड पे भी हैं, देखते जाइए, लिखते जाइए, कुछ भी मिस ना कीजिएगा. फर्स्ट सेंटेंस विद अ ब्लैंक जो है डेफिनेटली ये मल्टीपल चॉइस के साथ सेट की जाती है करेक्शन. आप पहले भी ऐसा क्वेश्चन जो है अपने मैट्रिकुलेशन में अटेम्प्ट कर चुके हैं, आप फेमिलियर हैं. सो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है. बस आइए इन्हें सॉल्व करते हैं और समझते हैं बुनियादी नकात को. सो एक्सरसाइज नंबर 11, फर्स्ट सेंटेंस विद अ ब्लैंक एंड गिवन बिलो 4 ऑप्शंस. पढ़ने लगा हूं, पे अटेंशन. आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970. वेरी इजी MCQs. 4 options are given. Please pay attention. So, try it. शाबाश, कोशिश करते रहिए. आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं. हाँ जी, यहां देखिए since हमारा एडवर्बियल क्लू है. याद रखिए कि आपने सबसे पहले
जो काम करना है सेंटेंस विद अ ब्लैंक पढ़ना है और उसमें जो टाइम एडवर्ब होगा उसको आपने पहले सोचना समझना है और फिर आपने चॉइसेस जो हैं उनको पढ़ना है एंड आई डू बिलीव कि आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो सिंस जो है जरा मेमोराइज करवाते हैं आपको कि सिंस कौन से टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। सो रिकॉल कीजिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? यस, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में किया जाता है। सो जैसे ही आप टाइम एडवर्ब को परख लेंगे और आप रिकॉल कर लेंगे अपने प्रायर नॉलेज की बेस पे इस चीज को, तो डेफिनेटली एमसीक्यूज जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। सो यहां फिर जब हमने कहा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में सिंस और फॉर इस्तेमाल होते हैं, तो व्हाट कैन बी द राइट ऑप्शन? आई डैश लिविंग। सो द राइट ऑप्शन इज बीटा। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तवज्जो मरकूज रखिए। He dash here yesterday. Yesterday is the clue. So सबसे पहले yesterday के बारे में सीखना है और फिर प्रायर नॉलेज को भी आपने इस्तेमाल करना है। रिकॉल कीजिए कि yesterday कौन से टेंस में आता था। Yes, yes, you can do it. Yesterday is the clue of past indefinite tense, simple past tense. So yesterday हमें लीड करता है टू द राइट ऑप्शन। सो यहां पे चारों ऑप्शंस में से एक ही सही ऑप्शन है और वो है डेल्टा, केम। सो डेल्टा, ही केम हियर yesterday. So third MCQs. If you dash, I shall be available. So dear students, maybe it's a new thing for you. कंडीशनल सेंटेंस, वाओ, आपको तो पहले भी काफी कुछ आता है। सो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की जाए तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। सो इफ क्लॉज जो है ये उस वक्त प्रेजेंट में होता है जब जो अगला क्लॉज, नेक्स्ट क्लॉज जो है वो फ्यूचर में हो। तो आई शैल बी अवेलेबल जब ये फ्यूचर में है तो इफ वाले हिस्से में क्या आना था? प्रेजेंट। सो यहां पे इफ यू कम, बीटा इज द राइट ऑप्शन। आई शैल बी अवेलेबल। नेक्स्ट, ही डैश द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही डैश द एग्जामिनेशन next year. Next year is the clue which can lead us to the right option. So very easy, क्योंकि next year, tomorrow, next week ये किसके clue हैं? शाबाश, try it. Yes, ये future indefinite tense के clues हैं। तो यहां पे क्या आएगा? He dashed the examination next year, तो will take, beta is the right option. सो लास्ट एमसीक्यूज इस एक्सरसाइज को देखिए और लास्ट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ही डैश टू अस टुमारो। अब यहां अभी अभी मैं बात कर रहा था कि नेक्स्ट वीक या टुमारो या फिर नेक्स्ट ईयर, ये कौन से टेंस के क्लू हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट के। सो यहां पे भी क्या आएगा? ही डैश टू अस टुमारो। सो बीटा अगेन इज द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, this is our exercise number 11 and now move to exercise number 12. So exercise 12 का जो first MCQs है वो देखेंगे। It dash continually for 4 days. For 4 days. So since और for को अभी अभी डिस्कस किया कि perfect continuous tenses में since और for का इस्तेमाल होता है। For जो है वो period of time के लिए और since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं कि चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन कौन सी है। सो इट डैश कंटिन्यूली फॉर 4 days। तो राइट ऑप्शन अल्फा है, हैज बीन रेनिंग। सो
सेकंड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यस्टरडे से ही कुछ क्लिक करने लगेगा। शी डैश हर सन विद अ रॉड। लेकिन याद रखिए, बिफोर यू have a look of 4 given options, don't select any option. Maximum और minimum, right option तो एक ही है। So जब आप सारी options पढ़ लेते हैं तब आपने जो right option है select करनी है। So yesterday से click तो किया होगा कि ये कोई past indefinite का जुमला है, लेकिन पढ़े बगैर option select नहीं करते। Yesterday she dashed her son with a rod, तो राइट ऑप्शन जो है वो है अल्फा, बीट। बीट फर्स्ट फॉर्म भी होती है और बीट ही क्या होती है, सेकंड फॉर्म। और हाँ, थर्ड फॉर्म में वेरिएशन आती है और वो बीटन होती है, लेकिन अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सो थर्ड एमसीक्यूज, व्हाट हैव यू बीन डैश ऑल द मॉर्निंग। व्हाट हैव यू बीन डैश ऑल द मॉर्निंग। अब यहां पे हैव बीन डेफिनेटली आपके जहन में आ रहा होगा कि ये कौन सा टेंस है, ये कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग ऑल द मॉर्निंग। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड लास्ट इस एक्सरसाइज का। वी डैश डिनर व्हेन आवर फादर केम होम। अब ये जो व्हेन आवर फादर केम होम है, इस क्लॉज को सीखिए कि ये क्लॉज जो है व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, इसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। और हाँ, ये टाइम क्लॉज है जो कि माजी के वक्त की तरफ इशारा भी कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां व्हेन क्लॉज में, इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में अगर केम लगा है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, तो इसका मतलब है कि इससे पीछे भी जो ब्लैंक है उसमें कोई पास्ट फॉर्म ही आनी है। सो वी डैश डिनर। और अगली एक बात याद रखने वाली है कि जब कोई दो एक्शंस एक ही जुमले में आए और एक एक्शन दूसरे से पहले कंप्लीट हो चुका हो, तो वो क्या करते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ट्रांसलेट करते हैं। सो वी डैश डिनर व्हेन आवर फादर केम होम। गॉट इट? वेरी इजी एमसीक्यूज। तो यहां क्या आएगा, we had started dinner. So last MCQs of this exercise, we dash on a picnic tomorrow. अब यहां पे बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। Tomorrow is the clue of future, लेकिन कौन सा फ्यूचर, चारों ऑप्शंस को देखें, समझें कि कौन से फ्यूचर की यहां बात हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, माइंड इट कि इस फ्यूचर को अरेंज फ्यूचर टेंस कहते हैं। हाँ, अरेंज फ्यूचर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो ये अरेंज फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चारों ऑप्शंस देखें, विल और शैल वाली कोई ऑप्शन दी ही नहीं गई। और यहां पे क्या है, वी डैश ऑन अ पिकनिक टुमारो। सो राइट ऑप्शन अरेंज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक अल्फा, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो। So, dear students, move to exercise number 13. First MCQs, I dashed to hospital yesterday. Yesterday, simple MCQs. Yesterday is the clue of past indefinite. So, right option क्या है? Negative sentence है. So, I did not go to hospital yesterday. Beta is the right option. So, second MCQs, he dashed to college every day at 8 o'clock. Every day. ये हमारा क्लू है, इसको अंडरलाइन कीजिए और इसी को आप रिमाइंड एंड रिकॉल कीजिए कि ये आपको किस तरफ इशारा देता है। चारों ऑप्शन है, तो चारों में से राइट ऑप्शन जल्दी कीजिए। Oh yes, goes. He goes to college every day at 8 o'clock. So that's really fantastic. आपने सही कहा, goes is the right option, क्योंकि every day ये present indefinite tense की पहचान है। किस तरह? क्योंकि ये रूटीन एक्शंस और हैबिट्स इन प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड एमसीक्यूज पे।
He asked me where I dash. He asked me. Dear students, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि क्लॉजेस के टेंस का ख्याल रखना चाहिए कि अगर पहला क्लॉज पास्ट में है तो डेफिनेटली जो सेकंड क्लॉज है वो भी पास्ट में होगा. ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का एक असूल है. सो ही आस्क्ड मी वेयर आई डैश. आस्क पास्ट फॉर्म है तो आगे क्या आएगा? वेयर आई डैश. तो पास्ट ही कोई आना है तो चारों देखते हैं कौन सी आएगी. यस, चार्ली इज द राइट ऑप्शन. वेयर आई वॉज गोइंग, तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग. सो आज का हमारा सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज एक्सरसाइज नंबर 13 में से. द गेस्ट डैश हियर लास्ट नाइट. लास्ट नाइट यस्टरडे की तरह क्लू है पास्ट इंडेफिनेट का, तो जरा गौर कीजिए कि क्या आएगा. यस, चार्ली इज द राइट ऑप्शन. रीच, द गेस्ट रीच हियर लास्ट नाइट. सो लास्ट एमसीक्यूज, फिफ्थ एमसीक्यूज फ्रॉम आवर एक्सरसाइज नंबर 13. He laughs as if he dash weeping. So while teaching in some of my lectures, I told you as if के बाद बाजुकात क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो तो हम प्लूरल वर्ब, पास्ट प्लूरल वर्ब लगाते हैं. हाँ, याद करें मैंने बताया था कि जब कोई पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात हो रही हो, कुछ सपोज किया जा रहा हो, तो ऐसा हम करते हैं कि एज इफ और इफ, एज दाओ वगैरह के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तो हम क्या लगाते हैं? प्लूरल पास्ट वर्ब लगाते हैं. सो यहां गौर कीजिए, ही लॉफ्स एज इफ सपोज किया जा रहा है ही वर वीपिंग. दैट्स गुड. So dear students, this is our today's lecture. I do believe you have got all the things very intellectually. May God bless you. Stay safe. Stay blessed.